ऑन करो। Hello beta, good morning. Today we are taking the topic of exponents of the real numbers. Exponents का मीनिंग क्या होता है बेटा? Raised to power. मीन्स हम रियल नंबर की आज पावर्स की फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है? ओके, तो लेट मी स्टार्ट. ओके गाइस, लेट मी स्टार्ट. First we are taking the case when we are given positive integral power. Positive integral powers. If we are taking a cube where a is any positive real number. If we are taking a cube का मतलब क्या है? Now power is 3, it is positive integer. इसका मीनिंग क्या है कि हम इस a को 3 times मल्टीप्लाई करने वाले हैं. Its meaning is this. तो जितनी भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, इट मीन्स उस बेस को उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग 2 क्यूब, इट मीन्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 3 टाइम. सो 2 into 2 into 2 it becomes 8. It means 2 raised to power 3 it becomes 8. तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 8. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिया 3 raised to power 4. इट मीन्स मैं इस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाला हूं. तो वी में राइट 3 into 3 into 3 into 3. 3 into 3 9. Again 3 into 3 9. तो it becomes 81. क्लियर बेटा? तो जितना भी हम एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर लेने वाले हैं, इट मीन्स उस क्वांटिटी को उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं. आफ्टर दिस, नेगेटिव इंटीग्रल पावर. Negative integral power if we are taking a raised to power minus 3 where a is any positive real number. अब पावर -3 ले रहे हैं, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको रेसिप्रोकल करें तो ये पावर आपकी पॉजिटिव बनने वाली है. You may write a raised to power -3 like 1 by a raised to power 3. इसका मीनिंग क्या हुआ? You may write it is 1 by a raised to power 3. It means 1 by a को हम 3 times मल्टीप्लाई करने वाले हैं. तो you may write 1 by a into 1 by a. For example, I am taking 2 raised to power -3. मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 by 2 raised to power 3. अब आप इसको कंप्लीट की पावर 3 लिख सकते हैं, 1 by 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 2 raised to power 3 डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल में? 1 by 2 raised to power 3, और you may write it is 1 by 2, then 1 by 2, then 1 by 2. It is 1 by 8. इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता था, 2 raised to power -3, जिसको मैं 1 by 2 raised to power 3, जिसको हम 2 into 2 into 2 ऐसा भी लिख सकते हैं. Again you may write it is 1 by 8. आपकी कन्वीनियंट है. आप इसको होल की पावर में लिखना चाहें तो 1 by 2 कंप्लीट को रिपीट करेंगे. अगर डिनोमिनेटर की पावर लिखना चाहें तो डिनोमिनेटर को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं. मैंने 3 raised to power -3 लिख दिया. क्या इसको आप कर सकते हैं? You may write it is 1 by 3 raised to power 3 means 1 by 3 into 3
into 3, then 3, it is 1 by 27. So you may write it is 1 by 27. So it is clear, either you are given positive integral power or negative integral power. How can we solve, how can you simplify, and you must be very much clear. Okay beta? Okay, then after this we are given some laws of integral power. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ laws of integral power. Laws of integral power. कुछ हमारे बेसिक रूल्स होते हैं इंटीग्रल पावर के, जिसको हम लॉज ऑफ इंटीग्रल पावर बोलेंगे. आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ सम्स करने वाले हैं. ओके बेटा, फर्स्ट, इफ वी आर गिवन a raised to power m into a raised to power n, where a is positive as well as m and these are also positive integers, you may say. जब दोनों का बेस सेम होता है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर को हम ऑलवेज ऐड कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. सो यू मे राइट a raised to power m plus n. Means when terms are given in multiply form and their bases are same, always we can add the powers. Okay? For example, मैंने लिख दिया बेटा 3 raised to power 5 into 3 raised to power 2. So you may write 3 raised to power 5 plus 2, यानी कि 3 raised to power 7. Clear? Again, let me take one more example. b raised to power p, then b raised to power q, where p and q both are any positive integers. You may write, अब बेस दोनों का सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे. You may write p plus q. ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम ऑपरेशंस हम यूज करेंगे, जब बेस आपके पास सेम होंगे, टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी, तो उनकी पावर्स को हम ऑलवेज ऐड कर सकेंगे. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट. इफ वी आर गिवन सेकेंड लॉ, if we are given a raised to power m divided by a raised to power n, a raised to power m divided by a raised to power n, you can write. अब देखो नीचे वाली टर्म को जब ऊपर लेके आने वाले हैं तो इसकी पावर के साइन चेंज होने वाले हैं. इसको मैं लिखने वाला हूं -n. जब रेसिप्रोकल करते हैं टर्म्स का तो उसकी पावर के साइन चेंज होते हैं. ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे तो साइन चेंज होंगे, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में तो भी साइन चेंज होंगे. अब दोनों का बेस सेम हो गया. फिर से इसका मतलब पावर को ऐड करेंगे तो क्या लिख सकेंगे, इट इज m minus n. So you may write it is a raised to power m minus n. Any doubt? For example, मैंने लिख दिया 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 4. क्या लिख सकेंगे इसको, 3 raised to power 7 into 3 raised to power -4, then 3 raised to power 7 minus 4. You may write 3 raised to power 3. देखिए बेटा, जब 3 raised to power 4 को ऊपर लेके जाने वाले हैं तो इसके साइन चेंज, दोनों का बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स इनकी पावर का सम होने वाला है. तो 7 minus 4 दैट बिकम्स +3 एंड 3 raised to power 3. 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स 27. Any doubt? We remember now, if we are given in division form, when bases are same, ऊपर जाके पावर नेगेटिव होने वाली है तो इनकी पावर का डिफरेंस बनने वाला है. नेक्स्ट लॉ, बेसिक लॉ, when we are given a into b raised to power n, जब बेस मल्टीप्लाई में है
इनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द सेम पावर। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a raised to power n into b raised to power n। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। when two terms are in multiply form their power are same, then base can be multiplied, power will be same। दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, पावर उनकी सेम है, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द सेम पावर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2। पावर दोनों की सेम ले ली ना बेटा, तो क्या लिखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 5 then its power is 2 means 15 raised to power 2 and this is 225। सो बी रिमेंबर, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, जो भी पावर है उनको सेपरेट विद द सेम पावर कर सकते हैं। अगेन दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैं एक बार जल्दी से रिमाइंड करा रहा हूं। मल्टीप्लाई में टर्म्स है, बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे। डिवीजन में टर्म है, बेस सेम है, पावर का सब्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस होने वाली है। जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, उनकी पावर सेम है, तो बेस को हम मल्टीप्लाई विद द सेम पावर कर सकते हैं। नेक्स्ट, we can say it is now very important one more I'm taking one question on the basis of these properties. If we are given 1 by 2 raised to power 5 minus 2 by 3 raised to power 4 then 3 by 5 raised to power minus 1. Now he says simplify this. इसको सिंप्लीफाई करना बेटा। अब कब इसकी पावर नेगेटिव है, उसको कैसे लिखना है, बिल्कुल अब आपके पास रूल्स मैंने बता दिए हैं, आपके पास लॉज मैंने बता दिया है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 by 2 raised to power 5, यानी कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, माइनस 1, you may write minus 1 raised to power 4 into 2 by 3 raised to power 4। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसकी पावर नेगेटिव आ गई, तो मैं इसको 1 by this भी लिख सकता हूं, या इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो पावर पॉजिटिव, देन डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर अपने आप ही रेसिप्रोकल हो जाती है, पावर बिकम्स 1। और यू विल राइट इट इज 1 by 3 by 5, ऐसा भी लिख सकते थे। एंड जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई। व्हाट इज दिस, इट इज 2 raised to power 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32, माइनस 1 की पावर इवन नंबर, यानी कि माइनस 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1 आ गया। देन 2 raised to power 4 16, 3 raised to power 4 81, देन इट इज 5 by 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से जो भी कैंसिल होने वाला है आप उसको कैंसिल अप कर सकते हैं। 16 2 जा 32 and you will write it should be 5 divided by 3 2 जा 6 into 81, it is 5, then it is 6, it is 48। So what should be the answer? It should be 5 divided by 486। Is it clear? So again this was very important question because there are so many operations, then we have to learn these all operations. Next, I'm taking next one more question. It is 3 times a raised to power 4 b raised to power 3, then 18 a raised to power 3 b raised to power 5. Now he says simplify this. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, 3 into 18, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए वाली टर्म्स को ए वाली टर्म्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं, a raised to power 3 बिकॉज दीज ऑल आर इन मल्टीपल। जब मल्टीपल की टर्म है कोई भी आगे पीछे हम
लिख सकते हैं। तो बी क्यूब को मल्टीप्लाई टर्म्स में साथ ले लेते हैं, बी रेज़्ड टू पावर 5। ऐसा मैंने क्यों किया है? अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, जब टू टर्म्स मल्टीप्लाई में है, उनका बेस सेम है, तो उनकी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो बेटा इन दोनों का बेस सेम, इनकी पावर ऐड कर सकेंगे। इन दोनों का भी बेस सेम, तो इनकी पावर को भी ऐड कर सकेंगे। तो 18 3 जा 54। यहां से बेटा a की पावर 4 + 3 7, देन b raised to power 3 + 5 8. So what should be the final result? 54 a raised to power 7 into b raised to power 8. That will be your final result. I hope it should be clear. Okay बेटा, अब कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज करनी है इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपकी बेसिकली 4 लॉज ही बताया है मैंने, और सारे के सारे सम्स आपके जो भी इंटीग्रल पावर की फॉर्म्स चलते हैं वो इन्हीं 4 बेसिक लॉज पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। 7 raised to power n + 2 minus 3 into 7 raised to power n + 1 divided by 20 into 7 raised to power n minus 2 into 7 raised to power again n. Again he says simplify it. इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। अब सेम टर्म्स अगर आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है तो उनको हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब यहां से बेटा मैं इसको 7 raised to power n की फॉर्म में लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर में भी। तो 7 raised to power n को हम कॉमन निकालेंगे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अब देखो दो टर्म्स का पावर में क्या है, दो टर्म्स का सम। अब इसको मैं सेपरेट करता हूं, तो 7 की पावर n इंटू 7 स्क्वायर, 7 raised to power n इंटू 7 स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, अगर दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करें तो यही तो आने वाला है। तो हम पावर को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। -3 इंटू 7 raised to power n इंटू 7 raised to power 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से बेटा 20 इंटू 7 raised to power n और यहाँ से -2 टाइम 7 raised to power n। अब देखो इसमें भी 7 raised to power n है, इसमें भी, तो कॉमन निकाल दो ना इसको। तो 7 raised to power n कॉमन, 7 स्क्वायर 49 माइनस 7 इंटू 3 21, 7 raised to power n कॉमन 20 और यहां से बेटा -2 और 7 raised to power n से 7 raised to power n कैंसल, बिकॉज दीज आर द सेम टर्म्स इन मल्टीपल फॉर्म। ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 49 minus 21 it is 28 and this is yours 18। 2 9s are and 2 14s are, so you may write it is 14/9। that should be yours final simplification, that will be your final result। Is it clear? Again I am taking one more very important question। You may write 9 raised to power n into 3 square into 3 raised to power n minus 2 in 27 raised to power n divided by 3 raised to power 3m into 2 raised to power 3 and this is equal to 1/27, then show that or prove that m minus n should be equal to 1। We are given like this। देखो बेटा
दिस इम्प्लाई, जब आपके पास इक्वल साइन पहले से गिवन है तो दोबारा से इक्वल साइन नहीं लगाते हैं, तो दिस इम्प्लाइज यूज करेंगे। सबसे पहले 9 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर n को कंबाइन कर लेते हैं। अब 3 स्क्वायर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 9 माइनस 27 रेज़ टू पावर n। अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, क्या मैं इसको 3 रेज़ टू पावर 3 देन रेज़ टू पावर m भी लिख सकता हूं, into 2 रेज़ टू पावर 3 it becomes 8। एक लाज को हम और भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको मैं 5th लॉ लिख सकता हूं, अपने लाज में ऐड भी कर सकते हैं आप। इफ वी आर गिवन a रेज़ टू पावर m into n, we may write a raised to power n then power n, or we may also write a raised to power n then its power is n। तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3m गिवन था, मैंने यहाँ पावर 3 लिख दिया देन होल की पावर m, क्योंकि जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 3m। ओके बेटा, देन इन दोनों को कंबाइन करेंगे, पावर सेम है, जब पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 27 रेज़ टू पावर n इंटू 9 माइनस 27 रेज़ टू पावर n, अगेन 3 रेज़ टू पावर 3 27 रेज़ टू पावर m इंटू 8। अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन है बेटा, एंड दिस वाज इक्वल टू 1/27 आल्सो, यस इट इज इक्वल टू 1/27 आल्सो। Now you can see 27 raised to power n is common from numerator. This implies 27 raised to power n is common from numerator. It is 9 minus 1 divided by 27 raised to power m into 8, and this is equal to 1/27. 9 minus 1 it is 8, 8 cancel with this 8। अब इस 27 को ऊपर लेके जाएंगे तो 27, दिस implies 27 raised to power n into 27 raised to power minus m। अब इस 27 को भी ऊपर लिखना चाहेंगे तो मैं इसको भी 27 raised to power minus 1 लिखने वाला हूं, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर के साइन चेंज होते हैं। दोनों का बेस सेम है, तो 27 रेज़ टू पावर n माइनस m, दिस इज 27 रेज़ टू पावर माइनस 1, बेस सेम है, पावर को इक्वेट करेंगे तो n माइनस m इज इक्वल टू -1। अब दोनों टर्म इक्वल है बेटा, इनका बेस सेम है, तो नेचुरली इनकी पावर भी सेम आने वाली है। तो नाउ इट बिकम्स n माइनस m इज इक्वल टू -1। यही आपको प्रूव करना था, पर प्रूफ में +1 है तो बेटा माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर m प्लस का आने वाला है, n नेगेटिव होने वाला है, इधर ये प्लस, एंड दैट वाज योर्स रिक्वायर्ड प्रूफ। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा जो भी प्रॉपर्टीज आपके पास गिवन है, प्रॉपर्टीज को आपको बड़े ध्यान से देखना है, बट एक प्रॉपर्टी एक लॉ को और साथ ऐड कर लेंगे, पावर को पावर से भी ऑलवेज हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और भी आपको देने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस आपके रहते हैं। सो लेट मी टेक 2-3 मोर क्वेश्चंस। x raised to power a divided by x raised to power b, then whole raised to power 1 by ab into x raised to power b divided by x raised to power c whole raised to power 1 by bc into x raised to power c divided by x raised to power a
whole raised to power 1 by AC and this is equal to 1. We have to prove it. Prove that this should be equal to 1. क्लियर बेटा? मुझे 1 के इक्वल प्रूव करना है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, आपकी राइट हैंड साइड आने वाली है. इसको बड़े ध्यान से देखना बेटा. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? यू मे राइट x रेज टू पावर a. अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आऊं तो इसकी पावर के साइन चेंज होने वाले हैं. माइनस b, देन इट्स पावर इज 1 by ab. Similarly, then you may write second term x raised to power b into x raised to power minus c. Then its power is 1 by bc. Then x raised to power c into x raised to power minus a. Then its power is 1 by ac. Okay, now we are using the laws. Base are same, power will be added. So x raised to power a minus b, then its power is 1 by ab. X raised to power b minus c, then its power is 1 by bc. X raised to power c minus a, then its power is 1 by ac. अभी आपने सबसे लास्ट को पढ़ा था, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो x रेज टू पावर a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी, x रेज टू पावर b माइनस c डिवाइडेड बाई बी सी, x रेज टू पावर c माइनस a डिवाइडेड बाई सी ए. मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं. x raised to power a divided by ab minus b divided by ab, then x raised to power b by bc minus c by bc, x raised to power c by ca minus a by ca. a से a कैंसिल, c से c, सिमिलरली c से c, b से b, then b से b, then a से a. तो some powers in this way can be cancel up. कुछ इसमें पावर्स की फॉर्म कैंसल अप होने वाली हैं. So what is the left hand side? Now x raised to power 1 by b minus 1 by a, then x raised to power 1 by c minus 1 by b, then x raised to power 1 by a minus 1 by c. तो 1 by a minus 1 by c. सभी टर्म्स मल्टीप्लाई हुए हैं, सबका बेस सेम है, सबकी पावर को ऐड कर सकेंगे. तो 1 by b minus 1 by a, 1 by c minus 1 by b, 1 by a minus 1 by c. तो 1 by c से 1 by c कैंसिल, 1 by a से 1 by a, 1 by b से 1 by b, तो x रेज टू पावर 0. अब किसी भी टर्म्स की पावर को 0 लेते हैं अदर देन 0, तो ये टर्म्स आपके पास 1 आने वाला है. तो इसका मतलब मैं x की पावर 0 को क्या लिख सकता हूँ? 1. एंड दैट वाज योर्स राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड. Clear beta? It means in this way you can simplify this, and you can, by using these all properties, you can simplify. And this question was very important question because we are using almost all the operation in this question. सबसे पहले क्या किया, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव होने वाली है. बेस सेम है, पावर ऐड होने वाली है. फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं, इनको सेपरेट करने वाले हैं. देन लास्ट में जब बेसिस सारे सेम है, मल्टीप्लाई में टर्म्स है, इनकी पावर को ऐड कर सकते हैं. अब ऐड करने के बाद x की पावर 0 आने वाली है
और x की पावर 0 मीन्स 1 and that becomes the right hand side. Is it clear? I am taking one more question. Show that one by 1 plus x raised to power b minus a plus x raised to power c minus a plus 1 by 1 plus x raised to power a minus b plus x raised to power c minus b, then plus plus 1 by 1 plus x raised to power b minus c plus x raised to power a minus c, and we have to prove that must be equal to 1. Again we have the same type of question, but we have the different operation. So see very carefully. Again we will take the left hand side. तो 1 divided by 1 plus x raised to power, अब इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूं, x raised to power b into x raised to power minus a, similarly plus x raised to power c into x raised to power minus a, then plus 1 by 1 plus x raised to power a into x raised to power minus b, then x raised to power c into x raised to power minus b, then plus 1 by 1 plus x raised to power b into x raised to power minus c plus x raised to power a into x raised to power minus c. तो मैंने स्प्लिट किया है बेटा, x की पावर b माइनस a, मैंने इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट किया है, 2 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है. तो 1 by 1 plus x raised to power b by x raised to power a, x raised to power c by x raised to power a, similarly 1 by 1 plus x raised to power a by x raised to power b, x raised to power c divided by x raised to power b, then 1 by 1 plus x raised to power b by x raised to power c plus x raised to power a by x raised to power c. सबका एलसीएम लेंगे बेटा, तो यू में राइट 1 by, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो x raised to power a, here is 1, it is x raised to power a plus x raised to power b plus x raised to power c. Similarly for the next 1 by, again taking LCM, तो x raised to power b plus x raised to power a plus x raised to power c, again you can say it is 1 by x raised to power c, it is x raised to power c, x raised to power b, x raised to power a. डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आते हैं, x raised to power a, it is x raised to power a, x raised to power b, x raised to power c. Similarly x raised to power b, then x raised to power a, x raised to power b, x raised to power a, x raised to power c, then again x raised to power c, तो x raised to power c, x raised to power b, x raised to power a. अब तीनों टर्म्स के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, फिर से एलसीएम ले लेंगे बेटा. नाउ यू कैन से दिस इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या रहा है, x raised to power a plus x raised to power b plus x raised to power c. यहाँ से बेटा x raised to power a, x raised to power b, x raised to power c, and this complete cancel with this complete, and this is equal to 1, and that was the right hand side.
hence proved. So in this way, so today we have taken the exponential form of the real numbers, and you must remember these all laws as well as how can we use these laws to simplify to solve the questions. Okay, I hope these all things will be very much clear. Okay beta, so we will continue from this topic onward in the next lecture. Okay, till that, bye bye.